Okay, Prem, inform your class that operating system class is going on. Join it as soon as possible. What we were studying in our previous class? Yes, student. सर डाटी पेज पढ़ रहे थे, टीएलबी इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस ये सब पढ़ रहे थे। Okay. Effective memory access time calculation. Yes, memory protection. So, have you done any kind of numerical on effective memory access time? Have you tried any numerical? यस सर, एक न्यूमेरिकल शायद किए थे हम लोग। नॉट अबाउट क्लास, आप लोग घर पे क्या कर रहे थे? घर पे कुछ किए कि नहीं? क्लास में रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि सारा न्यूमेरिकल क्लास में होगा। कल छुट्टी का दिन था, क्या किए? मतलब एक भी न्यूमेरिकल अपने से ट्राई नहीं करना है क्या? Okay, do you remember the address translation in the paging? Mechanism of address translation in the paging? Okay, it is 11:05. Let's start today's class. So,
In our previous class, we have completed the concept related with valid, invalid width, and we have seen that what is the term related with the dirty page, and we have also seen how we can calculate the access time, effective memory access time in case of TLB. And we, in the previous class, we have also seen about how we can convert address, logical address, into the physical address if we are using the paging scheme. So now moving forward with that, now there is a concept, as we have seen in IPC, inter-process communication, that if there will be two processes and they are sharing certain kind of data or code or text part in their process, then that can be happen with the help of pipes, shared codes, shared memories, message passing. And in that we will see some concept related with that, which is known as shared pages. How pages are shared among the process. So shared, it means that two or more than two process are having some common data part. Okay, common data here, the data means information, not the exact data. Here the data means the common information we have among two process. It can be process I, it can be process J. Okay, so this is the scenario. So what is shared pages? Pages जो आपका, it means कि क्या होता है, process होता है. Process को हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट उसको हम क्या करते हैं, पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, और जो इनका पार्ट किया जाता है या पार्टीशन किया जाता है, पार्टीशन का जो साइज होता है दैट इज सेम इन केस ऑफ पेजिंग. ओके, तो अब जो हमने जो प्रोसेस बनाया फ्रॉम द हेल्प ऑफ प्रोग्राम. ओके, प्रोग्राम के हेल्प से जो प्रोसेस बनाया गया स्टूडेंट्स, प्रोग्राम के हेल्प से जो प्रोसेस बनाया गया, ठीक है, प्रोसेस कैन हैव वेरियस पेजेस एंड पेजेस कैन बी शेयर्ड. ओके, कॉमन डेटा है तो वो शेयर्ड होगा. वन कॉपी ऑफ रीड ओनली और री-इंट्रेंट कोड शेयर्ड अमंग प्रोसेस. इट कैन बी टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, कंपाइलर हो सकता है, विंडोज सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं. Similar to multiple threads sharing the same process space, also useful for inter-process communication if sharing of read-write pages is allowed. Because हमने inter-process communication में भी देखा था कि अगर शेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, it will be beneficial, but there is also restriction that कि वहाँ पे synchronization maintained होना चाहिए. But that is not today's concern. Today's concern in that how the pages are shared. ओके, अब पेजेस को शेयर करने के अलावा ये तो हुआ कि आपका प्रोसेस होगा उसमें शेयर्ड कोड होगा, और प्रोसेस के अंदर में अपना भी प्राइवेट डेटा हो सकता है. अब प्राइवेट डेटा, ये कोड क्या होता है, वो विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोसेस ओनली, फॉर दैट प्रोसेस ओनली, दैट इज नोन एज प्राइवेट कोड. ओके, ईच प्रोसेस कीप्स अ सेपरेट कॉपी ऑफ कोड एंड डेटा जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली उस प्रोसेस के लिए होता है, तो उनको प्राइवेट कोड एंड डेटा कहा जाता है. The pages for the private code and data can appear anywhere in logical address space. मतलब logical address space जो है हमारे पास, उसको आप कहीं भी जाकर के सेव कर सकते हैं प्राइवेट डेटा को, ठीक है. ओके, बट now we will go through one of the example where we will see the shared data or shared pages among various process. So moving upon to that, so here we have three process scenario: process 1, process 2, process 3, and they have certain data. These are pages, ed1, ed2, ed3, data 1, ed1, ed2, ed3, data 3. Like that, process 2 also have ed1, ed2, ed3.
and data. Here the data part which we are see, which is this is the private data. This is the private data, but ED1, ED2, ED3 here everywhere is common. That is shared page. That is the shared page. And how many shared page we have? We have 3 shared page named as ED1, ED2, ED3. ओके सभी में है ये सारी चीज। तो अब क्या होता है, मैंने एक बात आप सभी को बताई थी कि जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए एक अपना पेज टेबल होता है। प्रोसेस 1 के लिए जो पेज टेबल होगा दैट इज सेपरेट, प्रोसेस 2 के लिए अपना पेज टेबल होगा, प्रोसेस 3 के लिए पेज टेबल होगा। अब जो हम डेटा को यहाँ पे डेटा को लोकेशन कर रहे हैं, कहाँ लोकेट कर रहे हैं हम, कहाँ पे, हम अपना मेन मेमोरी में इसको लोकेट कर रहे हैं। तो अब ये जो मेन मेमोरी में इनको लोकेशन प्रोवाइड की जा रही है, अब आप देखेंगे कि ED1, ED2, ED3 को कम्युलेटिवली जो लोकेशन है फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4 एंड फ्रेम नंबर 6 में लोकेशन दिया गया हर एक जगह पे। फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4, फ्रेम नंबर 6, 3, 4 and 6, 3, 4 and 6। ओके, तो अब चूंकि ये शेयर्ड है तो ये क्या कर सकते हैं, एक ही लॉजिकल एड्रेस स्पेस में हम इनको पुट कर सकते हैं और वहां से क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस होगा, अदर प्रोसेस 1 हो चाहे प्रोसेस 2 हो चाहे प्रोसेस 3 हो, वहीं से ही इसको पिक कर सकता है। सो दैट विल बी इजी टू स्टोर, स्पेस कम वेस्ट होगा हमारा, ठीक है, इस तरह से। और हमारे पास जो नया पेज टेबल बनेगा, नया पेज टेबल में वो लोकेशन उनके लिए पहले से स्टोर, ठीक है। But each and every process has their separate data also, and separate data have different location। जैसे कि प्रोसेस 1 से जो प्राइवेट डेटा था वो फ्रेम नंबर 1 में है, यहां देखिए फ्रेम नंबर 1 में डेटा 1 है। उसी तरह से फ्रेम नंबर 2 में हमारे पास डेटा 3 है विच इज रिलेटेड विथ प्रोसेस 3, एंड फ्रेम नंबर 7 में आपका क्या है, डेटा रिलेटेड विथ प्रोसेस क्या है 2, डेटा रिलेटेड विथ क्या है प्रोसेस 2। तो जो कि वहां पे लास्ट पॉइंट में बात की गई थी कि यू कैन स्टोर द पेजेस एट एनी लोकेशन इन द सेकेंडरी मेमोरी, तो वो आप कहीं भी इसको क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। बट जो आपका क्या होगा, शेयर्ड पेजेस होगा, सभी का लोकेशन क्या होगा, सभी का लोकेशन सेम होगा इन ईच एंड एवरी प्रोसेस। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड पेजेस। किसी को कोई प्रॉब्लम? सभी को समझ में आया शेयर्ड पेज क्या होते हैं, प्राइवेट डेटा क्या होते हैं, कैसे इनका लोकेशन होता है? यस स्टूडेंट्स। सर ये शेयर कैसे कर रहे हैं, थोड़ा एक बार और समझाइएगा। शेयर कैसे कर रहा है, यहाँ पे आपका सेम डेटा है ना, ED1 है, ED2 है, ED3 है, ये प्रोसेस 1 के लिए है, ये प्रोसेस 2 के लिए, प्रोसेस 3 के लिए है। तो वो सेम लोकेशन में जब ये प्रोसेस आपका लोड होगा, इट मीन जब आपका पेज टेबल ये लोड होगा तो क्या होगा, उसको यही फ्रेम मिलेगा कि फ्रेम नंबर आपका क्या है, फ्रेम नंबर 3 में आपका क्या है, ED1 है, फ्रेम नंबर 4 में आपका क्या है, ED2 है, और फ्रेम नंबर 6 में आपका ED3 है। और जो भी उसका प्राइवेट डेटा है वो क्या है, वो अलग अलग लोकेशन पे, डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रोसेस क्या है, वो अलग अलग लोकेशन पे। तो ये शेयर्ड है, सभी का तो क्या है, सेम ही लोकेशन पे जा रहा है ना। ED1 को अगर रेफर करना पड़ेगा, लेट मी क्लियर दिस लिटिल बिट। ठीक है, आई हैव क्लियर दिस नाउ, लेट्स कॉन्सेंट्रेट। तो आपका क्या होगा, अगर मान लिया जाए आपके पिताजी को घर पे पहुंचना है तो वो क्या करेंगे, वो भी वही क्या करेंगे, वही लोकेशन पे पहुंचेंगे। आपको पहुंचना है घर पे, आप भी वही लोकेशन पे पहुंचेंगे, आपके मम्मी को पहुंचना है, वो भी यही लोकेशन पे। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज शेयर्ड बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स और वेरियस प्रोसेस, एग्जैक्टली इफ वी वांट टू टेल दैट।
ओके, सेम ही लोकेशन है, क्या है आपका ED1 के लिए सभी जगह लोकेशन क्या है, सेम है, तो ये क्या है, शेयर्ड है। ओके, दिस पेज, और हमारा पेज टेबल में क्या स्टोर होता है स्टूडेंट, पेज टेबल में हर एक पेज नंबर के अलॉन्ग विथ हमारा फ्रेम नंबर स्टोर है, ठीक है। तो ये जो हमारे पेजेस हैं वो सेम ही लोकेशन पे जाएंगे जब आपका ED1 को रेफर करने जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ED1 क्या होगा, सेम ही डेटा होगा ना जो सब रेफर कर रहे होंगे। यस यस सर। ओके, इसी तरह से ED2 ED3 ED2 ED3, और जब उसको अपना प्राइवेट डेटा पे जाना होगा तो वो क्या होगा, सबके लिए डिफरेंट लोकेशन है, प्राइवेट डेटा पे जाने के लिए सबका डिफरेंट लोकेशन है। जैसे प्रोसेस 2 को अगर अपना प्राइवेट डेटा पे जाना होगा तो वो लोकेशन नंबर 7 पे जाएगा। प्रोसेस 1 को अगर डेटा 1 चाहिए होगा इसको तो वो क्या होगा, फ्रेम नंबर 1 पे जाएगा, लाइक दिस, ये क्या होगा, फ्रेम नंबर 2 पे जाएगा। समझ में आया शेयर्ड पेजेस? यस सर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम अपॉन टू द स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल हमारा क्या होता है, पेज टेबल में हमारा जो बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ पेजिंग, ठीक है। अब मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ पेजिंग इट मींस कि यू विल हैव द लॉजिकल एड्रेस एंड इन द पेजिंग स्कीम हमारे पास क्या होता है, पेज ऑफसेट होता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय D, और हमारे पास क्या होता है, पेज नंबर होता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P। तो अगर आपके पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उस केस में क्या है कि आपका एक 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है, और जो आपका पेज साइज है वो 4 KB का पेज साइज है। तो अगर बाइट एड्रेसेबल है तो 4 KB का अगर आपका पेज का साइज दिया हुआ है तो हाउ मेनी बिट इट विल कंज्यूम, बाइट एड्रेसेबल है, जो सिस्टम है दैट इज बाइट एड्रेसेबल, 12 बिट होगा सर। 12 बिट होगा। ऑफसेट के लिए क्या हो जाएगा, 12 बिट हो जाएगा, और 32 में अगर हम 12 माइनस करिए तो कितना बिट बचेगा स्टूडेंट, 20 सर। 20 बिट बचेगा। तो पेज टेबल के पास कितने एंट्रीज होंगे, कितने नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 20, 2 रेज टू द पावर 20। यस स्टूडेंट, ये समझ में आया, एंट्री समझ में आई, कितनी एंट्री होगी। जस्ट आप क्या करें, जो पेज नंबर है, कितने नंबर ऑफ पेजेस पॉसिबल है इनके लिए, उसको आप कन्वर्जन कर लें, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एंट्रीज मिल जाएगी। नंबर ऑफ एंट्री 2 रेज टू द पावर 20 है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली आपका क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि 1 मिलियन एंट्री होगा, ठीक है। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी एग्जैक्टली 2 रेज टू द पावर 20। और सर अगर 2 का पावर 32 है, वो क्या है सर? 2 का पावर 32 मैंने ये क्या बताया, यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस स्पेस है 32 बिट का, ठीक है ना। ओके, अब देखिए जो भी एंट्री है इट मींस पेज टेबल में अब क्या होगी, एंट्री होगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा, फ्रेम नंबर स्टोर्ड होगा, वैलिड इनवैलिड बिट है या नहीं है, पेज प्रोटेक्शन बिट है, तो हर एक यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। अब हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा एक फ्रेम में एक इसके लिए जो एंट्री है उसका जो साइज है वो 4 बाइट का साइज है, 4 बाइट का साइज है। तो हमारा जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है उसका साइज या पेज टेबल अलोन का साइज कितना हो जाएगा, 4 बाइट इंटू हाउ मेनी पेजेस वी विल हैव, 2 रेज टू द पावर 20, और 2 रेज टू द पावर 20 को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 MB। गेट इट? यस स्टूडेंट, समझ में आया? सो गए क्या सब? यस सर।
यस सर। ओके, तो अब देखिए अब क्या है, ये जो 4 MB है, अब देखिए 4 MB कितना होता है, बहुत छोटा सा स्पेस है आपको, तो इतना स्पेस आपको हर एक प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। ओके, अब जो पेजिंग है, पेजिंग आप हायरार्किकल पेजिंग कर सकते हैं, हैश्ड पेज टेबल का यूज कर सकते हैं, या इन्वर्टेड पेज टेबल का यूज कर सकते हैं। ओके, और हमें जो सिलेबस है उसमें हायरार्किकल पेजिंग और इन्वर्टेड पेज टेबिंग, इन्वर्टेड भी उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, हमें मेनली हायरार्किकल पेजिंग को डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो उसमें मूव ऑन करते हैं। हायरार्किकल पेज टेबल क्या होता है आपका? हायरार्की मतलब क्या होता है कि हायरार्की क्या हुआ कि योर grandfather will have your fathers and uncles, and आपके क्या होंगे, इन पेरेंट्स के चाइल्ड होंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ हायरार्की, यू कैन सी दिस इज अ काइंड ऑफ हायरार्की। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट के बीच में रिलेशन है, पाथ है। ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ हायरार्की। ब्रेकअप, अब अगर हम बात करें पेजिंग के सेंस में, तो पेजिंग के सेंस में हायरार्की क्या हो सकती है कि अगर हमारे पास क्या हो रहा है, वी डज नॉट हैव सफिशिएंट स्पेस टू स्टोर a particular page table at a sequential manner. इट मीन्स कि जो हमारा प्रीवियस जो एग्जाम्पल था उस केस में क्या हुआ कि सिर्फ 32 बिट का ही मेरा लॉजिकल एड्रेस था, और उसमें क्या हुआ 4 मेगाबाइट जो है वो कंज्यूम हो रहा है। इट मीन्स ये स्पेस हमको क्या चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए। तो ये जो कंटिन्यूस स्पेस है, इसको अगर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उसको अब हायरार्की बनाते हैं। इट मींस एक आपका आउटर पेज टेबल बनता है, फिर आपका इनर पेज टेबल बनता है, इंटरमीडिएट पेज टेबल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड वी कैन ब्रेक द हायरार्की। ओके, तो जो सिंपल टेक्निक जो यूज की जाती है उसमें 2 लेवल पेज टेबल की जाती है। इट मींस 2 लेवल पेज टेबल में एक आपका आउटर लेवल होगा, एक आपका इनर लेवल होगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक जो भी हमने एग्जाम्पल देखा है उसमें 1 लेवल पेज टेबल का यूज किया गया है। आपका सिंगल पेज टेबल होता था, और इस सिंगल पेज टेबल के हेल्प से हम क्या करते थे, अपने मेन मेमोरी को एक्सेस करते थे कि वो फ्रेम का लोकेशन क्या है। Now if there is a situation that it is not possible to store this page table in a contiguous memory, so we will break this page table also in number of frames and we store it into a different pages. ओके, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पे आपका ये कहलाएगा कि आपका 2 लेवल पेजिंग है। ये आपका आउटर पेज टेबल है, ये आपका इनर पेज टेबल है, और ये तो आपका मेमोरी है जो कि पहले भी था। ठीक है, तो हम क्या करें, ये सिंपल अप्रोच है। नाउ हियर यू कैन सी द 2 लेवल पेज टेबल स्कीम। हियर आपका क्या है, एक आउटर पेज टेबल है, और वो आउटर जो पेज टेबल है वो क्या कर रहा है, फिर एक इनर पेज टेबल के को रेफर कर रहा है कि ये जो पेजेस है वो क्या है, इस लोकेशन पे हैं, ये जो पेज टेबल है इस लोकेशन पे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इफ द नीड अराइजेस वी कैन ब्रेक द पेज टेबल आल्सो इनटू वेरियस पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिकली अभी 2 लेवल पेज टेबल है, जिसमें कि एक आउटर है, एक इनर है, और फिर एक मेमोरी है। गेट इट? समझ में आया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपको पेजिंग पे नहीं पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, क्या पी बन रहा है, क्या डी बन रहा है, कभी कभी पूछे जाते हैं। लेकिन अब जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो क्या है, हायरार्किकल पे पूछे जाते हैं, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, इस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या है कि नाउ मूविंग अपॉन टू द एग्जाम्पल रिलेटेड विथ 2 लेवल पेज टेबल। तो 2 लेवल पेज टेबल में क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो अभी सिनेरियो है कि आपके पास जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो 32 बिट का है। तो इट मींस क्या हुआ, आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना हो गया, ये हो गया आपका लॉजिकल एड्रेस।
ओके, ये कितना है इसका, अगर हम साइज के बारे में बात करें तो इट इज 32 बिट। ओके, इट इज 32 बिट। अब यहां पे क्या है कि अगर आपके पास जो पेज का साइज है वो क्या है, 1K का पेज का साइज है। ओके, 1K पेज का साइज है, इट मींस पेज ऑफसेट कितना का हो जाएगा, पेज ऑफसेट कितना का हो जाएगा, 1K इज इक्वल इनटू 2⁻10। यस स्टूडेंट? यस सर। तो जो पेज ऑफसेट हो जाएगा वो कितना का हो जाएगा, 10 बिट का हो जाएगा पेज ऑफसेट। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा, ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा, ये कितना का हुआ, 22 बिट का ये हो गया। एनी कंफ्यूजन? नो सर। 22 बिट का हो गया। तो इट मींस पेज नंबर कंसिस्ट ऑफ 22 बिट एंड पेज ऑफसेट कंसिस्ट ऑफ 10 बिट। ओके, अब ये क्या हुआ कि इसको हमको फर्दर डिवाइड करने की आवश्यकता पड़ गई। इट मींस हम 2 लेवल पेज टेबल का यूज करना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, यहां पे फिर से हमारा जो पेज ऑफसेट होगा वो क्या होगा, 10 बिट का होगा पेज ऑफसेट। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो एक पेज बनेगा, एक पेज जो भी हमारा बनेगा या पेज टेबल जो होगा, वो पेज टेबल क्या हो सकता है हमारा 2⁻, इसका ऑफसेट जो है, ऑफसेट जो है वो 2⁻ क्या है, 10 का है। ठीक है, तो वो क्या होगा, पेज ऑफसेट कभी आपका चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा कि नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी पॉसिबल है। तो अगर यहां पे स्टार्टिंग में 22 हमारे पास क्या था, 22 बिट का था, तो अब हमारे पास पेज नंबर के लिए कितना बिट बच जाएगा स्टूडेंट, यहां पे कितना बिट बच जाएगा स्टूडेंट, 12। ओके, तो अगर हम यहां पे जैसे कि यहां पे बात करें तो आपका क्या होगा, जो ये डायग्राम यही है जो मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया है। यस, तो यहां पे क्या है कि पेज ऑफसेट है D, वो तो आपको क्या हुआ कि यहां पे 2 लेवल में हमने ब्रेक किया है। तो जो यहां पे P1 इंडेक्स है ये बता रहा है कि इंडेक्स इनटू द आउटर पेज टेबल, जो आउटर पेज टेबल है उसमें हमारा नंबर ऑफ एंट्रीज कितना होगा। तो कितना नंबर ऑफ एंट्रीज है, 2⁻12। ओके, और अगर जो हमारा क्या है कि इनर है, इनर में हमारा कितना एंट्री है, जो P2 है, P2 इज द डिस्प्लेसमेंट विद इन द पेज टेबल ऑफ द इनर पेज टेबल। इट मींस इसको जो एक आउटर पेज टेबल को यहां पे आते हैं, आउटर पेज टेबल को जो एंट्री मिलेगी वो क्या हो गई, वो डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करेगा कि अच्छा चलो हमको एड्रेस लोकेशन मिला लाइक 140। ठीक है, तो ये क्या होगा, 140 पे जाएगा और फिर उसको 10 बिट का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट जैसे कि यहां पे हम करते थे, डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देते थे एड्रेस में, जिस फ्रेम में हम पहुंचे, जैसे कि यहां है कि ये फ्रेम नंबर इसमें पहुंच जा रहा है तो ये पेज टेबल इसमें पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, इट मींस 10 बिट जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड होगा और वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाएगा कि अच्छा चलो ये लोकेशन है हमारा, और ये लोकेशन फिर जहां पे स्टोर होगा इनर पेज टेबल में, ये क्या होगा, ये हमको देगा कि कौन सा फ्रेम नंबर में ये जाकर के स्टोर है, तो वो फ्रेम नंबर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा यहां पे ये वैल्यू है ये बता रहा है कि आपका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आपका इनर पेज टेबल के लोकेशन में जाने के बाद। ओके, और इनर में लोकेशन के जाने के बाद जो हमको एड्रेस मिलेगा उस एड्रेस पे हम जाएंगे, और जो लास्ट में डिस्प्लेसमेंट है, पेज ऑफसेट का डिस्प्लेसमेंट है, उसको ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, मेन मेमोरी के किस लोकेशन में हमारा क्या है, ये एड्रेस कैसे वहां पे बन रहा है। जो डेटा मेन मेमोरी में होगा फिर वो हमारे काम का है। ओके, समझ में आया? यस स्टूडेंट? टू लेवल पेजिंग समझ में आया, कैसे हम एड्रेस को ट्रांसलेट करेंगे इसमें?
अभी मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा जिसमें एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में बताया हुआ है, वो एज इट इज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना, वो एज इट इज वही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम। तो सबसे पहले जो एड्रेस होगा, लॉजिकल एड्रेस होगा, उसको अब हमने क्या किया, 3 पार्ट में ब्रेक किया है, P1, P2 एंड D। P1 क्या रेफर कर रहा है, P1 रेफर कर रहा है आपका आउटर पेज टेबल में लोकेशन। तो क्या होगा, आउटर पेज टेबल में ये जो हमें पेज नंबर मिलेगा, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, आउटर पेज टेबल के उस लोकेशन पे जाएंगे। ओके, आउटर पेज टेबल की उस लोकेशन पे जाएंगे और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे इस वैल्यू, ठीक है। अब ऐड कर दी उस वैल्यू को, तो हम क्या हुआ, इसमें इस लोकेशन पे आए और उस लोकेशन में आने के बाद हम क्या करेंगे, हमें मिलेगा P2 का वैल्यू, और P2 को फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे इनर पेज टेबल में। अब हम इनर पेज टेबल में पहुंच गए। इनर पेज टेबल में पहुंचने के बाद अब हमें उस एड्रेस पे जो डेटा मिलेगा उस फ्रेम पे हम जाएंगे और उस फ्रेम में हम क्या करेंगे, फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम P1 में आए। P1 में आने के बाद हम क्या हुआ, P1 में जो हमें यहाँ पे जो एड्रेस यहाँ पे होगा हम उस एड्रेस पे पहुंचेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस एड्रेस में हम P2 डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे। तो हम एक जो लोकेशन पे पहुंचेंगे वो लोकेशन हो जाएगा P1 P2 का। फिर उसके बाद उस लोकेशन में पहुंचने के बाद क्या करेंगे, वो हम रेफर करेंगे, वो हमें बताएगा कि बेसिकली कौन सा फ्रेम नंबर में हमको जाना है। अब हम क्या हुआ, उस फ्रेम नंबर में पहुंच गए। अब उस फ्रेम नंबर में पहुंचने के बाद फिर से हम डिस्प्लेसमेंट D को ऐड करेंगे और हमें मिल जाएगा जो एग्जैक्ट लोकेशन जो हमें पहुंचना था वो। तो दिस इज द एड्रेस ट्रांसलेशन फॉर 2 लेवल पेज टेबल। समझ में आया स्टूडेंट? यस और नो? यस सर। सभी को? यस सर। यस सर। ओके, 3-4 लोग, बाकी लोग सो रहे हैं? सर अगर आपको अब क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी टाइप का कि नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है हमारा इनर पेज टेबल में, ith जो है एक लेवल पे कितना नंबर ऑफ एंट्रीज है, आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, उसी जैसे नंबर ऑफ जो आपका लेबल होगा, लेबल में लेबल बाय लेबल ब्रेक करते चले जाएंगे। और इसमें बहुत आसान है, एक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बस आपको वही पकड़ के चलना है कि जो आपका पेज का ऑफसेट होगा वो चेंज नहीं होगा, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, किसी भी लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो आप फर्स्ट लेवल पे हैं तब भी आपका ऑफसेट 10 ही है, सेकेंड लेवल पे गए तब भी आपका ऑफसेट 10 है। तो इट मींस जो आपका लॉजिकल एड्रेस है उसको अगर लेवल बाय लेवल में ब्रेक करना है, तो अगर आपका इनिशियल में, जैसे कि एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, चलिए, जैसे कि आपको 3 लेवल में ब्रेक करना होगा, अभी तो 2 लेवल में ब्रेक किया, अब 3 लेवल में अगर ब्रेक करना होगा तो क्या करेंगे, ये D बन गया, ये D बन गया, ये D बन गया और ये मेरा P बन गया, क्योंकि ये तो सभी सेम ही रहने हैं। तो ये क्या हो गया, 3 लेवल में ब्रेक हो गया। अब अगर हमको और ब्रेक करना है, इट मींस कि क्या हो जाएगा, यहाँ D सब सेम है। तो अगर मैं मान रहा हूं कि D का वैल्यू अगर 10 है, 10 बिट है, 10 बिट है, 10 बिट, तो आपका अगर 32 बिट का अगर है ये, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बिट का। ओके, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हम अगर इसको इतने लेवल में ब्रेक करेंगे, आउटर पेज टेबल में हमारा कितना नंबर ऑफ एंट्रीज होगा, अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं? यस स्टूडेंट? यस सर। नंबर ऑफ एंट्रीज कितना हो जाएगा, 2⁻² एंट्रीज हो जाएगा। अब बोलेगा ये तो आउटर हो गया, अब हमारा ये हो गया फर्स्ट लेवल में। अब अगर हमारा सेकेंड लेवल में नंबर ऑफ एंट्रीज कितना हो जाएगा, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10 + 2, इसमें कितना नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएगा,
आपका सेकेंड लेवल में तो 2 रेज टू द पावर 12 इतना इंक्रीज होगा। नेक्स्ट लेवल में कितना होगा तो 2 रेज टू द पावर 12 प्लस 10। ओके, इजी है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो क्या है 64 बिट का। ओके, अब हमारे पास क्या है, इवन 2 लेवल पेजिंग स्कीम इज नॉट सफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 लेवल पेजिंग में लेके चले जाए। ठीक है, तो अब हम अगर हमारे पास क्या है कि अगर 64 बिट है, 64 बिट है, इट मींस क्या हो गया, लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमारा 64 बिट का हो गया। ओके, ये हो गया 64 बिट का। अब यहां पे क्या है कि इफ पेज साइज इज 4 KB, 4 KB इट मींस कि पेज साइज क्या है आपका 4 किलोबाइट का है। ओके, 4 किलोबाइट का है। तो आपका जो पेज ऑफसेट हो गया वो कितने का हो गया स्टूडेंट? 12 वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो ऑफसेट हो गया वो 12 बिट का हो गया। तो पहले तो था 64 लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो अब अगर हम 1 लेवल पेज टेबल के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितना हो गया स्टूडेंट? इसको इससे घटा दीजिए, 64 माइनस 12 कितना हो गया, कितना? 52 बिट हो गया। वेरी गुड। ये क्या हो गया, मैं यहां पे बना रहा हूं, यहां पे क्या हो गया, ये यहां से यहां तक क्या है 52 बिट है। ओके, अगर ये 52 बिट है तो ये क्या हो गया कि नंबर ऑफ एंट्रीज 52 बिट है, तो साइज ऑफ द पेज टेबल क्या हो जाएगा, या फिजिकल एड्रेस स्पेस का साइज कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 52 इंटू, अगर एक पेज जो है उसका साइज 4 बाइट का है तो कितना हो गया साइज, कितना हो गया, इट इज वेरी ह्यूज, इट इज वेरी ह्यूज। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको और पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर हम एक लेवल और इंक्रीज करेंगे, 2 लेवल के बारे में बात करेंगे, तो दूसरे लेवल पे भी क्या हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं होगा ना, ऑफसेट तो एज इट इज रहेगा 12 बिट का। ओके, नहीं, यहां पे एक चीज दिया हुआ है, इफ 2 लेवल स्कीम इनर पेज टेबल कुड हैव 2 रेज टू द पावर 10 4 बाइट एंट्रीज। इसका ये मतलब हो कि इनर जो है आपका, इनर है उसका साइज इसने क्या है, यहां पे गिवन है कि इनर का साइज क्या है 2 रेज टू द पावर 10 का, तो ये क्या हो गया 10 बिट का हो गया। तो अब कितना बिट बच गया, यहां से यहां तक के लिए कितना बिट बच गया स्टूडेंट, 42 बिट बच गया। ओके, तो ये हो गया 2 लेवल पेज टेबल में। अगर हम इसको और ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, ओके, अब इसको अगर और ब्रेक करेंगे तो सेकेंड आउटर जो पेज टेबल हो जाएगा उसमें कितना हो जाएगा हमारा 10 10 ही होगा सर। 10 ही होगा। यस सर, क्योंकि लिखा है इनर पेज टेबल का 10 ही होगा, क्योंकि इनर का साइज लिख दिया है इसने कि आपका 2 रेज टू द पावर 10 का है, जो भी इनर बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब जो रिमेनिंग बच गया वो कितना हो गया 32 का हो गया। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू कैन ब्रेक द लॉजिकल एड्रेस स्पेस इनटू वेरियस पार्ट्स, एंड बाय दिस अप्रोच यू कैन मेक द हायरार्की। अब ये हायरार्की क्या हो जाएगा, सबसे पहले आउटर पेज टेबल पे जाएगा जो कि यहाँ पे 32 इंट्रीज मतलब 2 रेज टू द पावर 32 इंट्रीज ले रहा है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हर एक जो भी 2 इंट्रीज होगा उसको क्या होगा, उसका 10 बिट का ऑफसेट है, इट मींस क्या होगा कि वो उसको 1024 का ऑफसेट मिलेगा उसको। ओके, उसके बाद क्या हो, ये तो हो गया आउटर, ये हो गया इनर, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद फिर से एक इनर बचेगा। इट मीन जो भी यहाँ पे है इट मीन कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं इसमें कहा जाए तो आपका 10 बिट का यहाँ पे एंट्रीज हो, 32 बिट का यहाँ पे एंट्रीज हो गया, 10 बिट का यहाँ पे एंट्रीज हो गया, फिर यहाँ पे रिमेनिंग आपका 2 रेज टू द पावर 10 बिट का, हर एक के लिए 2 रेज टू द पावर 10 बिट का हो जाएगा। तो यहाँ पे 1024 फिर से आ जाएगा।
और 1024 फाइनली फिर किसको लोकेट करेगा, मेन मेमोरी को लोकेट करेगा। पूरा मेन मेमोरी का साइज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओके, सो हियर यू कैन सी दैट हम क्या करते हैं, कैसे इसको 2 लेवल में 3 लेवल में ब्रेक किया जा रहा है। यहां आपका डायग्राम है, एज आई हैव Sunil will sign that. Sunil is not here right now. Okay, so this is the scheme. Here you can see that it is a 2 level increase. ओके, ऑफसेट है आपका जो आउटर के लिए है, इनर के लिए ऑफसेट आपका 10 का दिया हुआ था, तो बाकी कितना बच रहा था 42। लाइकवाइज जो हमने फिर बोला कि नहीं इससे भी काम नहीं चल रहा है, 42 बिट की एंट्री आ गई है, अब हमको और फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, आउटर तो हमारा अभी भी वही है 12 10, फिर हमने 10 बिट का हर एक को आउटर एंट्रीज ले लिया, ऑफसेट यहाँ पे आउटर पेज टेबल इसको बना दिया। तो आपका क्या हो गया, सेकंड आउटर पेज टेबल जो आपका क्या बचा, 32 बिट का बच रहा है, एज आई एक्सप्लेन्ड हियर आल्सो। ओके, so via this mechanism you can break your logical address space into several parts till the restriction is satisfied. तो अब आपसे अगर कोई भी प्रॉब्लम पूछा जाएगा रिलेटेड विथ पेजिंग, आई थिंक यू कैन इजिली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। जो यूजफुल डेटा है बस उसको आप रीड करते जाइए, आपको प्रॉब्लम एज इट इज सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन करना और कुछ करना है नहीं इसमें। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? यस स्टूडेंट? नो सर। Okay, I have provided you link for today's attendance. Kindly fill it up. आपका मॉड्यूल 5 भी लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, अब थोड़ा बहुत उसमें पार्ट बचा हुआ है। आई थिंक 1-2 लेक्चर में मॉड्यूल 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट मॉड्यूल सिर्फ एक बचेगा, मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 6 में बहुत सारे चीज ऐसा है जो कि आप भी आसानी से पढ़ सकते हैं, मतलब फाइल क्या होता है, फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं उसमें। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं, आई थिंक बहुत लोग फाइल क्रिएट भी किए होंगे, फोल्डर भी क्रिएट किए होंगे, डायरेक्टरीज भी बनाए होंगे। ओके, सो डू सम स्टडी रिलेटेड विद दैट आल्सो। ओके ओके, लिंक मैंने भेज दिया, अटेंडेंस आप लोग फिलअप करते रहिए, कर लीजिए। सभी को लिंक मिल ही गया होगा। लेट्स सी आप लोग क्या फिलअप कर रहे हैं, तो देख लेते हैं।
Okay, student, if you have any kind of query related with today's session, then you can put your queries. Otherwise, we will end today's session right here, right now. ओके आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट एंड ओके नो डाउट. ओके आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन.